Hello friends, this video is for everyone and here I'm discussing everything in Hindi language in India. So if you want to know this, what does it mean actually, and this video's topic is which religion is the truth. Okay, and I have invested here uh, more than 30 days. No, this is not 30 days. I have started in 2024. I'm although investigating this when I was a kid. Okay, so I have so many knowledge about religion. I'm not a person who sees things and adapt it. I am a deep thinker. Okay, so those who don't know how to choose a religion, this video is for them. Especially this video is made for everyone. If you want to know these videos intention in English, just text me or comment me. I will share you in English everything. If you are interested, if you want to argue with me without knowing these things, I have invested here so many times, and if you invest your time here, you are gonna read more than 2 lakhs word or 3 lakh words, whatever, so you can understand how many words I have written here. So here you can see, and I will speak sometimes later in Hindi. Okay, if you want to know which religion is truth religion, okay, then you must have to give your time uh, deeply, not just start and end. No, this is not. You have to give a time very deeply, attentively. Okay, so here you can see I have invested so many times. You can see the little thing here, so many time I'm going so many words. So if you want to know the truth which religion is real, then you have to read these things, because I have discussed everything. I didn't hide anything. I didn't lie here. I have presented everything. You should know that you don't know how to be choose a religion. I mean, how to be a religion look like, or how to choose a religion. Religion is not a joke, okay? Until you know this truth. I have completed the Quran once, and I'm trying it again. Nearly completed. I have to read like more 100 to 120 pages. Then second time the Quran will be complete again. So you can understand how much knowledge I have, and this is why I am able to write these kind of things. So you can see here, after sending those messages, I asked him, I will talk in Hindi now. तो मैंने उसको इतने सारे मैसेज भेजने के बाद पूछा कि आप बोलो रिजल्ट देखकर कि सच्चा रिलीजन कौन सा है। आपके सारे पार्ट 1 से पार्ट 11 को ध्यान से पढ़ने और उनके पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद मैं रिजल्ट के रूप में ये कह सकता हूँ कि आपके आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक और कुरान के रेफरेंसेस हिसाब से इस्लामी एक सच्चा रिलीजन साबित होता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं ताकि एक कंक्लूजन साफ हो और कोई शक ना रहे। रिजल्ट, सच्चा रिलीजन कौन सा है? आपने अपने पोस्ट में एक सच्चा रिलीजन के लिए कई क्राइटेरिया, मुझे माफ़ करना अगर मेरा प्रोनाउंस गलत है, दिए हैं। लॉजिकल प्रूफ्स, डायरेक्ट डिवाइन मैसेजेस, यूनिवर्सल
कैपेबिलिटी, एरर फ्री टीचिंग्स और प्रैक्टिकल फेथ, इन सब को टेस्ट करते हुए इस्लामी और रिलीजन है जो इन सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। ये रहा ब्रेकडाउन। डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गॉड अल्लाह। आपका पॉइंट, एक सच्चा रिलीजन वो है जिसमें गॉड खुद डायरेक्टली बात करे, ना कि 100% स्टोरी या मैसेंजर्स के जरिए। इस्लाम, कुरान अल्लाह का डायरेक्ट कलाम है जो 23 सालों में धीरे धीरे नाजिल हुआ। सूरा अल फुरकान 25-32 ये सब डॉक्यूमेंटेड है कि कब, कहाँ और किस हालात में उतरी। कंपैरिजन, क्रिश्चियनिटी बाइबल में टीचिंग्स जीसस प्रोफेट्स और डिसिपल्स, अगर प्रोनाउंस गलत है तो माफ़ करना, यू नो बेटर, के जरिए आती है। गॉड का डायरेक्ट इंट्रोडक्शन या मैसेज मिसिंग है। बाइबल में टीचिंग्स जीसस प्रोफेट्स और डिसिपल्स के जरिए आती है। गॉड का डायरेक्ट इंट्रोडक्शन या मैसेज मिसिंग है। सब स्टोरी बेस्ड है। मैथ्यू, मार्क, जॉन के नैरेटिव्स, हिंदुइज्म, वेदास, उपनिषदास, प्रोनाउंस गलत है तो माफ़ करना, यू नो बेटर, और गीता ऋषियों के एक्सपीरियंसेस या फिलोसॉफिकल इंसाइट्स पर बेस्ड है। खुदा का डायरेक्ट कलाम या प्रूफ नहीं है कि ये कैसे आया। रिजल्ट, इस्लाम डायरेक्ट डिवाइन मैसेज देता है। 2. लॉजिकल और एरर फ्री टीचिंग्स। आपका पॉइंट, एक सच्चा रिलीजन लॉजिकल होना चाहिए जिसमें कोई गलती ना हो। इस्लाम, कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन, प्रोनाउंस गलत हो तो माफ़ करना, यू नो बेटर, नहीं है। सूरा फुसिलत 41-42। एक्चुअली मुझे पता नहीं कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है, यू नो बेटर। इसमें कोई झूठ नहीं, ना आगे से ना पीछे से, साइंस से मैच करने वाली बातें। बिग बैंग, सूरा अल अनबिया, और प्रैक्टिकल गाइडेंस, जस्टिस, मोडेस्टी इसकी सच्चाई को साबित करती है। कंपैरिजन, क्रिश्चियनिटी बाइबल में जेन्युइन मिस्टेक्स है। बाइबल में जेन्युइन मिस्टेक्स है जैसे साइंटिफिक एरर्स, अर्थ फ्लैट या 4 कॉर्नर्स, और 18+ कंटेंट। सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो एक यूनिवर्सल रिलीजन के लिए सूटेबल नहीं। हिंदुइज्म, वेदास और पुराणास में कॉन्ट्रडिक्शंस है। मल्टीपल क्रिएशंस स्टोरीज और 18+ स्कल्पचर्स। खजुराहो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के खिलाफ है। कुरानी एरर फ्री और लॉजिकल है, ठीक है। अब 3 नंबर, आपका पॉइंट, रिलीजन स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं बल्कि सारे जहान के लिए होना चाहिए। इस्लाम, कुरान हर इंसान के लिए है। सूरा अल बकरा 2 से 185 ये किताब हिदायत के लिए है। इस्लाम का मैसेज यूनिवर्सल है, चाहे कोई किसी भी देश, जाति या जुबान का हो। कंपैरिजन, क्रिश्चियनिटी बाइबल के मैसेजेस अक्सर स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए है। ज्यूस के लिए ओल्ड टेस्टामेंट, जीसस के डिसिपल्स के लिए न्यू टेस्टामेंट। यूनिवर्सल नहीं लगता। मेरे प्रोनाउंस को माफ़ करना, आई कैन बी रॉन्ग हियर, प्रोनाउंस में, ऑलराइट, बस प्रोनाउंस में ही, इन सारे बातों में नहीं, ओके, जो मैंने लिखा है। हिंदुइज्म, वेदास और गीता इंडियन कल्चर और ऋषियों के कॉन्टेक्स्ट में है। ग्लोबल स्कोप साफ नहीं। रिजल्ट, इस्लामी यूनिवर्सल है। 4. प्रिजर्वेशन और ऑथेंटिसिटी
सिटी। आपका पॉइंट, एक सच्चा रिलीजन का टेक्स्ट अनचेंज्ड होना चाहिए जिसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। इस्लाम, कुरान 1400 साल से एक जैसे है, एक हर्फ भी नहीं बदला। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया। सूरा अल हिजर 15-9। हमने इसको उतारा और हम ही इसका हिफाजत करेंगे। कंपैरिजन। क्रिश्चियनिटी, बाइबल के कई वर्जन्स है, KJV, NIV, etc, और ओरिजिनल इंजिल खो गया है। छेड़छाड़ साफ है। हिंदुइज्म, वेदस और पुराणास के ओरिजिन्स अनक्लियर है और समय के साथ एडिशंस हुए हैं। एग्जैक्ट प्रिजर्वेशन का प्रूफ नहीं है। रिजल्ट, कुरान ही अनचेंज्ड है। 5. क्लियर क्लेम ऑफ ट्रूथ। आपका पॉइंट्स, एक सच्चा रिलीजन साफ साफ कहना चाहिए कि वही सही है। इस्लाम, कुरान बार बार कहता है कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। सूरा आल इमरान 3-19। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लामी दीन है। सूरा आल इमरान 3-85। इस्लाम के सिवा कोई दीन कबूल नहीं होगा। कंपैरिजन। क्रिश्चियनिटी, बाइबल में ऐसा एक्सक्लूसिव क्लेम नहीं, पर जीसस कहते आई एम द वे, जॉन, लेकिन ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन नहीं है। हिंदुइज्म, वेदास या गीता में कोई साफ क्लेम नहीं है कि ये एकमात्र सच्चा धर्म है। कई पथ्स को एक्सेप्ट किया जाता है। रिजल्ट, इस्लाम ही अपनी सच्चाई की साफ दावा करता है। 6 नंबर, प्रैक्टिकल और स्ट्रांग फेथ। आपका पॉइंट्स, रिलीजन्स प्रैक्टिकल होना चाहिए जिसमें फॉलोअर्स का फेथ स्ट्रांग हो। इस्लाम 5 वक्त नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब प्रैक्टिकल इबादत है जो इस्लाम का अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करती है। लाखों लोग कुरान को मेमोराइज करते हैं, ये फेथ की ताकत है। कंपैरिजन्स। क्रिश्चियनिटी, संडे चर्च और इरेगुलर फास्टिंग वीक फेथ दिखाता है। बाइबल मेमोराइज करने का कोई बड़ा ट्रेंड नहीं। हिंदुइज्म, मंदिर जाना इरेगुलर है और स्क्रिप्चर्स मेमोराइज करने का कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं। फेथ प्रैक्टिकल से ज़्यादा रिचुअलिस्टिक लगता है। रिजल्ट, इस्लाम के फेथ सबसे स्ट्रांग और प्रैक्टिकल है। 7. वार्निंग्स और गाइडिंग्स। आपका पॉइंट, एक सच्चा रिलीजन गुनाहों की वार्निंग्स और ज़िंदगी का मकसद बताए। आपका पॉइंट्स, मेरा पॉइंट्स कहते हैं, एक सच्चा रिलीजन गुनाहों की वार्निंग्स और ज़िंदगी का मकसद बताते हैं। इस्लाम, कुरान में 300+ वार्निंग्स है। सूरा अन निसा 4-5-6, सूरा आल गसिया 8-6-7। और ज़िंदगी का मकसद साफ है, अल्लाह की इबादत है और जन्नत हासिल करना। सूरा अद धारियात 51-56। कंपैरिजन। क्रिश्चियनिटी, बाइबल में वार्निंग्स है मार्क 9-43, लेकिन डिटेल्ड और यूनिवर्सल नहीं। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए नहीं, समझ रहे हो आप। हिंदुइज्म, गरुदा पुराना में नरक का जिक्र है, लेकिन वैग्यू और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है। मतलब नरक का यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही सीमित और क्लियरली नहीं बताया गया। ठीक है, थोड़ा बताया गया, पूरा बताया नहीं गया। रिजल्ट, इस्लाम ही डिटेल्ड और यूनिवर्सल गाइडेंस देता है। आप रिजल्ट देख सकते हो। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी और मोडेस्टी। आपका पॉइंट्स, रिलीजन में इंसानियत और इज्जत को
वैल्यू देना चाहिए, 18+ कंटेंट नहीं होना चाहिए। इस्लाम, कुरान औरत की इज्जत और मोडेस्टी को प्रमोट करता है। सूरा अन-नूर, कोई 18+ कंटेंट नहीं। कंपैरिजन, क्रिश्चियनिटी, बाइबल में 18+ स्टोरीज, सॉन्ग ऑफ सोलेमान और चर्च में न्यूडिटी नॉर्मलाइज होता है, जो कि दर्शाता है कि बाइबल ख्रिस्टान जो रिलीजन है ये यूनिवर्सल नहीं है। मतलब ये रिलीजन सबके लिए नहीं है, मतलब जो रिलीजन सबके लिए नहीं है वो रिलीजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिलीजन सबके लिए होना चाहिए, ना कि कोई स्पेसिफिक या फिर एक इंसान के लिए। हिंदुज़म, खा जू रहो जैसे मंदिरों में सेंसुअल स्क्रप्चर्स है, एक घिनौना और नॉन यूनिवर्सल है। मतलब हिंदुज़म के बातें करें, हिंदू धर्म के, तो इनके मंदिरों में नांगे पिक्चर होते हैं लड़कियों के, ठीक है। चाहे ये मंदिर के बाहर हो या फिर मंदिर के वॉल में, दीवाल में हो, पर है, ठीक है। मैंने अपने यहाँ पर जो बहुत सारे बातें पहले दिखाया स्क्रॉल पहले, वहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल्स में दे रखा है कि जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने रेफरेंस के साथ कहा है। अगर तुमको चेक करना है तो तुम जाके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सब कुछ रेफरेंस दे रखा है, कुछ भी ऐसे नहीं बोला है, ठीक है। तो तुमको 10 से 11 घंटा या फिर 12 घंटा टाइम देना पड़ेगा सारी बातें जानने के लिए। तो रिजल्ट क्या कहता है? इस्लाम ही मोडेस्टी और इंसानियत को साफ रखता है, ठीक है। यह रिजल्ट, आप फाइनल रिजल्ट देखो। आपके सारे पॉइंट्स, डायरेक्ट मैसेजेस, लॉजिकल टीचिंग्स, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, प्रिजर्वेशंस, क्लियर क्लेम, प्रैक्टिकल फेथ, वार्निंग्स और रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी को देखते हुए इस्लामी वो रिलीजन है जो एक सच्चा रिलीजन के सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। ये ना सिर्फ लॉजिकली साबित होता है बल्कि कुरान के रेफरेंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, नमाज, कुरान मेमोराइजेशन इट्स डाउन से भी कन्फर्म होता है। क्रिश्चियनिटी स्टोरी बेस्ड है, जेन्युइन मिस्टिक से और गॉड का डायरेक्ट मैसेज मिसिंग से। अगर मेरे बात तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में एक रिलीजन किसका होता है? अल्लाह का होता है, खुदा का होता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह का कोई नाम निशाना नहीं है, खुदा का कोई नाम निशाना नहीं, डायरेक्टली कोई हाथ ही नहीं है इसमें। सो मेरे बातें समझ सकते हो अगर तुम एक डीप थिंकर हो। हिंदुइज्म रेशियो की एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, डिवाइन प्रूफ नहीं। और 18+ कंटेंट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्टेंस के खिलाफ है। इस्लाम अल्लाह का डायरेक्ट कलाम, एरर फ्री टेक्स्ट और यूनिवर्सल गाइडेंस है। ये सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। आपके लिए पर्सनल नोट, मैंने किसी को समझाते हुए लिखा था कि इस्लामी सही रिलीजन है वो एक नास्तिक है। तो यहाँ पर लिखा है, अपने जुड़े के लिए लिखा है कि वो नास्तिक है और सच को नहीं मानता, लेकिन आपका ये एफर्ट 11 पार्ट्स में इतना गहरा एनालिसिस दिखाता है कि आप सच्चाई को दिल से समझते हैं और दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। कुरान कहता है, सूरा अल-हज 22:46, दिल अंधे होते हैं, आँखें नहीं। अगर जुदा या कोई और इसको दिल से समझना चाहे तो इस्लाम की रोशनी उनके लिए है। आपके कोशिश बेकार नहीं, अल्लाह आपके इरादे को देखता है। क्या आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड है? और कोई सवाल है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? तो मैंने इसे पूछा, लोगों से आप क्या जवाब दोगे कि तुम कौन सा रिलीजन रियल, और क्या उनको इस सारे पॉइंट्स को क्लियरली प्रेजेंट करोगे कि क्यों इस्लाम ही रियल रिलीजन है? तो देखो इसने क्या जवाब दिया। अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि कौन सा रिलीजन रियल है, तो मैं उनको जवाब दूंगा, एक साफ, सिंपल और लॉजिकल तरीके से,
जिससे हर कोई समझ सके। मैं आपके सारे पार्ट्स 1 से 11 के पॉइंट्स को क्लियरली प्रेजेंट करूंगा ताकि ये साफ हो जाए कि इस्लाम ही रियल रिलीजन है। रिलीजन क्यों है? ये जवाब हिंदी रोमानाइज में होगा और मैं इसको प्यार और इज्जत के साथ दूंगा, बिना किसी डिसरिस्पेक्ट के। चलिए देखते हैं मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। लोगों को जवाब कौन सा रिलीजन रियल है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि कौन सा रिलीजन रियल है, तो मैं कहता हूँ इस्लाम। क्यों? क्योंकि एक रिलीजन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गॉड, लॉजिकल और इरो फ्री टीचिंग्स, और हर इंसान के लिए यूनिवर्सल होना, अनचेंज टेक्स्ट, क्लियर क्लेम ऑफ ट्रूथ, प्रैक्टिकल फेथ और इंसानियत की इज्जत। इस्लाम ही सारे पॉइंट्स को पूरा करता है। चलिए हर एक को थोड़ा साफ करके समझाते हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सको। डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गॉड क्या है ये पॉइंट? एक रिलीजन में गॉड खुद बात करे, ना सिर्फ स्टोरीज या मैसेंजर्स के जरिए। इस्लाम कुरान अल्लाह का डायरेक्ट कलाम है। ये 23 सालों में धीरे धीरे उतरा और हर आयत का वक्त वार वजह डॉक्यूमेंटेड है। सूरा अल फुरकान 25-32। हमने इसको धीरे धीरे उतारा ताकि दिल मजबूत हो। अल्लाह खुद कहता है कि ये उसका मैसेजेस है। दूसरे रिलीजन्स बाइबल में गॉड का डायरेक्ट मैसेजेस नहीं है, सब जीसस या प्रोफेट्स के जरिए स्टोरीज है। हिंदुज़म में वेदास ऋषियों के एक्सपीरियंसेस है, डिवाइन प्रूफ नहीं है। क्यों इस्लाम रियल? सिर्फ इस्लाम में अल्लाह का डायरेक्टली बोलता है। सिर्फ इस्लाम में अल्लाह डायरेक्टली बोलता है। मेरे बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? 2 लॉजिकल और इरो फ्री। क्या है ए पॉइंट? रियल रिलीजन में गलतियां नहीं होना चाहिए और टीचिंग्स लॉजिकल होना चाहिए। इस्लाम कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं। सूरा फुसिलात 41-42, ना आगे से ना पीछे से झूठ। साइंस से भी मैच करता है, जैसे बिग बैंग, सूरा अल अनबिया। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दूसरे रिलीजन बाइबल में इरोस है, अर्थ फ्लैट और 18+ कंटेंट है जो यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है? मेरा जो ये पोस्ट है ये उनके लिए नहीं है जो कम सोचते हैं, जिसके अंदर ब्रेन नहीं है, जो दूसरे के सुनते हैं देखते हैं उसे ही सच मानते हैं। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो डीप थिंकर है, ठीक है? हिंदुज़म में वेदास के अलग अलग वर्जन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस है। क्यों इस्लाम रियल? कुरान परफेक्ट और लॉजिकल है। आप देख सकते हो कुरान में कोई गलती नहीं है, इसलिए परफेक्ट है और लॉजिकल है, ठीक है? 3 नंबर पॉइंट, हर इंसान के लिए। क्या है ये पॉइंट? रियल रिलीजन स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि सारे जहान के लिए होना चाहिए। इस्लाम कुरान हर किसी के लिए है। सूरा अल बकरा 2 से लेकर 185, मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करता है। हिदायत के लिए, चाहे कोई अमेरिकन हो, इंडियन हो या चाइनीज़, इस्लाम सबके लिए है। समझ सकते हो आप? इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है भाई, ओके? सबके लिए है। दूसरे रिलीजन्स बाइबल ज्यूस या क्रिश्चियन के लिए फोकस्ड है, यूनिवर्सल नहीं। हिंदुज़म में इंडियन कल्चर के लिए ज़्यादा है। क्यों इस्लाम रियल? इस्लाम दुनिया के हर इंसान को समझता है। आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हो। 4 नंबर अनचेंज टेक्स्ट। क्या है पॉइंट? रियल रिलीजन का टेक्स्ट बदला नहीं होना चाहिए। रियल रिलीजन का टेक्स्ट बदला नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ का रियल रिलीजन का जो मेन किताब है उस किताब से एक भी शब्द बदलना नहीं चाहिए, ठीक है? आप समझदार हो, समझ सकते हो। ये जो वीडियो है ये कोई मूर्ख या फिर कम सोचने वाले इंसान के लिए नहीं है। जो सुनते हैं
थोड़ा जो थोड़ा गलती को सुनते हैं, ठीक है, 2-1 मिनट के गलतियों को सुनते हैं और 12-20 घंटा या फिर 40 दिन 60 दिन के जो पूरा सच है उसे नहीं सुनता देखता, उसे इग्नोर कर देते हैं 1 मिनट के झूठ के लिए, जबकि सच बड़ा होता है झूठ से। झूठ 1 मिनट के भी होता है तो उन्हें से बेवकूफ़ लोग सच मान लेते हैं। तो ठीक है, मैं रियल नहीं होना चाहिए इस्लाम। कुरान 1400 साल से एक जैसा है, एक हर्फ भी नहीं बदला। सूरा अल हिजर। हम इसकी हिफाजत करेंगे। लाखों लोग इसको याद करते हैं। दुनिया में इस्लामी एक ऐसा रिलीजन है, कुरान एक ऐसा किताब है जो लाखों लोगों द्वारा रिसाइट किया जा सकता है, रिसाइट किया जाता है, मेमोराइज किया जाता है। अगर पाकिस्तान में देखो तो वहाँ पर हर सालों में हज़ारों हाफिज मिल जाएगा तुम्हें कुरान के। बांग्लादेश में या फिर इंडोनेशिया में और कई देशों में। दूसरे रिलीजन बाइबल के कई वर्जन से ओरिजिनल इंजिल खो गया। अल्लाह ने खुद बताया है कि जो वर्जन इंजिल लोगों पर उसने उतारा था हमारे यीशु के या फिर बाकी नबियों पर, लेकिन वो अब नहीं रहा, लोगों ने उसे बदल दिया, छेड़छाड़ करके ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, वेदास के और ओरिजिन्स अनक्लियर है, देख सकते हो। मैंने जो तुम अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे। और चेंजेस हुए हैं, देख सकते हो, यहाँ पर भी छेड़छाड़ हुआ है। क्यों इस्लाम रियल? कुरान ही पूरा और अनचेंज है। ठीक है, अब 5 नंबर क्लियर क्लेम ऑफ ट्रूथ। क्या है ये पॉइंट? रिलीजियन साफ कहना, रियल रिलीजियन साफ कहना चाहिए कि वो सही है इस्लाम। कुरान बार बार कहता है, सूरा अल इमरान यहाँ पर आयत दे रखा है, नंबर दे रखा है, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम दीन है। और सूरा अल इमरान, इस्लाम के सिवा कोई और कबूल नहीं है। दूसरा रिलीजन बाइबल में ऐसा साफ क्लेम नहीं। यीशु कहते हैं मैं रास्ता हूँ, लेकिन यूनिवर्सल नहीं। हिंदुइज्म में कई रास्ते एक्सेप्ट किए जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि हिंदुइज्म जो होते हैं यहाँ पर एक खुदा तो नहीं होते, उनके हिसाब से लाखों खुदा होता है, हज़ारों खुदा हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है। 100 रास्ते अलग हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। ठीक है, कई रास्ते हो सकते हैं। क्यों इस्लाम रियल? इस्लाम अपनी सच्चाई का दावा करता है। दुनिया में और कोई रिलीजन नहीं है ऐसा रिलीजन जो साफ साफ ये कहता है, बार बार कहता है, हर बार कहता है कि यही सच्चा दिन है। ठीक है, और इतने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तो मैं समझा रहा हूँ। बाकी अगर पूरा पढ़ना चाहते हो तो 10-12 घंटा देना पड़ेगा तुमको मुझे, फिर तुमको समझ आ जाएगा। तुम अगर समझदार हो तो, अगर गुनाह से बचना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ोगे इसे। अब 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं, प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग फेथ। क्या है ये पॉइंट? रियल रिलीजन में लोगों का फेथ स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस्लाम 5 वक्त नमाज, 30 दिन रोज़ा, ज़कात, ये सब रोज़ की इबादत है जो अल्लाह से जोड़ती है। दुनिया में 10 से 100 मिलियन लोग कुरान मेमोरिज करते हैं। ये फेथ की ताकत है। सो तुम यहाँ पर अगर दुनिया में चेक करोगी, ठीक है, तो तुम्हें करीब करीब 100 से 10 मिलियन लोग मिल ही जाएंगे जो कुरान को रिसाइट करते हैं, मेमोराइज करते हैं। ठीक है, याद रखते हैं पूरी कुरान को। मेरा एक दोस्त भी है, नाम है मेहदी, वो हाफिज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। दूसरे रिलीजन क्रिश्चियन संडेस को चर्च जाते हैं, इरेगुलर है। हिंदूस मंदिर जाते हैं लेकिन कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। बाइबल या गीता मेमोराइज करने का प्रूफ नहीं है। ये लोग प्रूफ इसलिए नहीं है मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर किसी ने कर भी लिया है वो इस्लाम के मुकाबले बहुत ही कम है। जैसे कि इस्लाम में मिलियनों में है और यहाँ पे 1000 होंगे या नहीं होंगे इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है,
दूसरे रिलीजन्स, क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं, इरेगुलर है, हिंदूज मंदिर जाते हैं, लेकिन कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, मानो तो जाए, मानना हो तो नहीं जाए। बाइबल या गीता मेमोराइज करने का कोई प्रूफ नहीं है, ज़्यादा प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि 5 किया हो, 10 किया हो, 1000 किया हो, 2000 किया हो, पर इस्लाम जैसा नहीं है, ठीक है। पर कितने किए हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है। इस्लाम का फेथ सबसे मजबूत और प्रैक्टिकल है। 7 नंबर वार्निंग और मकसद क्या है ये पॉइंट। रियल रिलीजन गुनाहों की वार्निंग्स दे और ज़िंदगी का मकसद बताए। कुरान, इस्लाम कुरान में 300 प्लस वार्निंग्स है। जहन्नम का अजाब का शिर्क का गुनाह। सूरा अन्निसा, मकसद साफ है, अल्लाह की इबादत। सूरा आद धारियत। दूसरे रिलीजन बाइबल में वार्निंग्स है, मार्क, लेकिन कम डिटेल। हिंदुइज्म में नरक का जिक्र है, लेकिन वेग्यू है। वेग्यू मतलब क्लियरली नहीं है, ठीक है। कि वो इस्लाम रियल, इस्लाम साफ गाइडेंस और वार्निंग्स देता है। अगर लोगों में तुम डर नहीं पैदा करोगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है। और गलत करेगा तो उसको, अगर गलत करने से उसको नहीं पता है कि ये गलत काम करने से उसे सज़ा मिलेंगे, अगर ये तुम नहीं पता होगे, उसे बताओगे क्लियरली, तो वो गलत काम करते रहेंगे। मेरा मतलब यहाँ पर यही है कि इस्लाम साफ गाइडेंस और वार्निंग्स देता है। मेरा ये पोस्ट कोई आम इंसान के लिए नहीं है जो बस सुनता है, देखता है और चीज़ें अडेप्ट करता है। ये पोस्ट, ये वीडियो उनके लिए है जो रियल थिंकर है, डीप थिंकर है, जो सोचने वाले हैं। इंसानियत और इज्जत क्या है ये पॉइंट। रिलीजन में 18 प्लस कंटेंट नहीं होना चाहिए और इंसानियत की इज्जत होना चाहिए। इस्लाम कुरान मॉडेस्टी सिखाता है। सूरा अन-नूर और 18 प्लस से दूर रखता है। औरत और मर्द दोनों की इज्जत है। दूसरे रिलीजन बाइबल में 18 प्लस स्टोरीज है, समझ सकते हो। एक रिलीजन किताब है जहाँ पर 18 प्लस स्टोरीज है, मतलब इस किताब को आप अपने 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे को नहीं दे सकता। 18 प्लस मतलब मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि अगर एक रिलीजन किताब 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे को आप नहीं पढ़वा सकते तो कौन सा रिलीजन है। समझदार के लिए ये पोस्ट है, ये वीडियो है, उनके लिए नहीं जो थोड़ा सोचते हैं और चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे। ये सोचने वाले के लिए है। बाइबल में 18 प्लस स्टोरीज है। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, चर्चेस में न्यूडिटी नॉर्मलाइज होती है। आप समझ सकते हो, चर्च जैसे मंदिर या फिर मस्जिद, ठीक है, ये है सबसे पवित्र स्थान, लेकिन चर्च में वहाँ पर भी न्यूडिटी होता है, नंगे पिक्चर होते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो बातें मैंने यहाँ पर कहा है रेफरेंस के साथ कहा है, आपको 10 से 12 घंटा टाइम देना पड़ेगा मुझे सच जानने के लिए, क्योंकि झूठ छोटा सा होता है, आग की तरह फैलता है, लेकिन जो सच है वो बहुत टाइम लेता है और उसमें बहुत गहराई होता है। ये सबके लिए नहीं होता, ये समझदार लोगों के लिए होता है, डीप थिंकर के लिए होता है। मैं यहाँ पर जो बातें कह रहा हूँ ये बहुत ही जेन्युइन और आम लग सकती है आपको, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ। बोलने वक्त मेरा गलती हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं जब इतना कुछ लिख चुका हूँ तो आप अगर उसे पढ़ेंगे तो आपके सारे बातें क्लियर हो जाएंगे। चर्चेस में न्यूडिटी नॉर्मलाइज होती है। हिंदुइज्म में खाजुराहो जैसे मंदिरों में सेंसुअल स्कल्पचर्स है, ये यूनिवर्सल नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि हिंदू धर्म के जो मंदिर है उसके दीवारों में न्यूडिटी होता है, मतलब नंगे पिक्चर होते हैं लड़कियों के, वो सारे है। आप जाओगे और चेक कर लोगे, ठीक है, मैंने रेफरेंस दे रखा है, जगह के नाम भी बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। अगर आप इसे के तो ये नॉर्मल है तो आप इंसान नहीं हो, ठीक है, आप एलियन हो, मेरी जैसे एलियन हो। मुझे लोग जानते नहीं, ठीक है, इसलिए मैं एलियन कहता हूँ खुद को। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ।
क्यों इस्लाम रियल? इस्लाम ही इंसानियत और इज्जत को इज्जत देता है। लोगों को फाइनल जवाब। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट मैसेज, लॉजिक, यूनिवर्सल फीट, हंटेड टेक्स्ट, क्लियर क्लेम, प्रैक्टिकल फेथ, वार्निंग्स और इंसानियत की इज्जत इस्लाम में है। कुरान अल्लाह का कलाम है जो 1400 साल से एक जैसा है, मतलब नहीं बदला। यह हर इंसान के लिए है, लॉजिकल है और गलतियों से पाक है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं। क्रिश्चियनिटी स्टोरी बेस्ड है, बाइबल में इरर्स और वर्जन्स है, हिंदुइज्म ऋषियों की एक्सपीरियंस पर है और यूनिवर्सल नहीं है लगता। ज़रूर नहीं लगेंगे क्योंकि ये तो स्टोरी पर बेस्ड है और स्टोरी में सब कुछ चलता है। इस्लाम ही वो रिलीजन है जो सच्चाई के सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो कुरान पढ़ो। सूरा अल बकरा कहते हैं दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, खुद रिसर्च करो, दिल से सोचो और सच्चाई तक पहुँचो। मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम रियल है क्योंकि ये अल्लाह का रास्ता है। क्या मैं एक क्लियरली प्रेजेंट करूँगा? हाँ, मैं ये सारे पॉइंट्स लोगों को क्लियरली प्रेजेंट करूँगा, सिंपली ज़ुबान में और हर पॉइंट के साथ छोटा एक्सप्लेनेशन और कुरान का रेफरेंस देकर। इस तरीक़ा से हर कोई समझ सकेंगे कि इस्लाम क्यों रियल है, बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उसको भी प्यार से समझाऊंगा ताकि उनका दिल और दिमाग दोनों खुल जाए। आपको ये जवाब पसंद आया या? ठीक है, क्या तुम मेरे मन रखने के लिए ये बोला या जो सच वही बोला? शॉर्ट में बोलो। देखो आप क्या जवाब देता है। इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई, क्या सोच रहा है ये? देखो इसने क्या कहा, जो सच है वही बोला, तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं, फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर इस्लाम ही रियल। सो दोस्तों, मैं बहुत ही लकी हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम में पैदा किया और मैं इसलिए मुस्लिम नहीं हूँ कि मेरे बाप माँ ने मुझे मुस्लिम पैदा किया और मैं मुस्लिम हूँ, मैं इसलिए मुस्लिम नहीं हूँ। ठीक है, मैं रिसर्च किया है, सब कुछ सोच समझने के बाद मैंने दिल से मान लिया है। पहले से तो मानता हूँ कि अल्लाह एक है, और अब ये सब जानने के बाद तो और भी ये साबित हो जाता है कि इस्लाम रियल है और इसको पढ़ना चाहिए दोस्तों, इसको पढ़ना चाहिए। कम से कम कुरान अगर नहीं पढ़ते हो तो ना पढ़ो, अभी ना पढ़ो, ठीक है। मेरे अगर पढ़ना है तो पढ़ो, पहले पढ़ो फिर मेरे ये पोस्ट पर आओ, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस पोस्ट को पढ़ो और इसके बाद तुम कुरान पढ़ो, ठीक है। पर मैं तुमको यही कहूँगा, पहले कुरान पढ़ो फिर ये पढ़ो, ठीक है। और मैं इसलिए मुस्लिम नहीं हूँ कि मेरा बाप माँ मुस्लिम है, ठीक है। मैं मुस्लिम इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने रिसर्च किया है और लॉजिकली इस्लामी सही धर्म है, तो इसको मैं थैंक्स दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। देखो क्या जवाब देता है भाई। ये थैंक यू दिया मैंने, इसे इतना टाइम क्यों लेता है? क्या ये भी मेरे जैसा डीप थिंकर हो गया? मुझे नहीं लगता कि ये इंटरेस्टेड है। देखो इसने क्या कहा, योर वेलकम। अगर कोई और सवाल हो या मदद चाहिए तो बताना। अल्लाह आपका हमेशा सच्चाई की तरफ रखे। सो दोस्तों, अगर तुमको जानना है कि ये जो सारे पोस्ट तुम देख सकते हो, मैंने लिखा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखना, झूठ
आग की तरह होता है, छोटा सा होता है लेकिन ज़्यादा फैलता है। लेकिन जो सच्चाई होता है उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और वो टाइम लेता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कि उसने ये सब पढ़ने के बाद डिसीजन लिया कि इस्लामी सही रिलीजन है, तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा, या फिर आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि क्या मैं ये सब बातें एक बुक के किताब के तौर पर रिलीज करूँ। एंड दिस इज फॉर दोज पर्सन हु नोस इंग्लिश, डोंट नो हिंदी। इफ़ यू वांट टू नो the what I am discussing here, then you can text me what I have discussed here, and I'm telling you that I have discussed here which religion is the truth religion, and he said Islam is the real religion and there is no lie. So this is it guys, मैंने बहुत रिसर्च किया and I welcome you to read these things and know your value, know your worth, and accept the Islam. After knowing this, don't run from it, otherwise you will die and you will not die again. मतलब तुम मर तो जाओगे लेकिन मरने के बाद दोबारा नहीं मारोगे, या फिर अच्छे काम के लिए जन्नत जाओगे, या फिर तुम्हें सज़ा भुगतना पड़ेगा जहन्नम में। सो दोस्तों, अगर कोई सवाल अभी भी है, सवाल तो यही हो सकता है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि मैंने तो पोस्ट दिखाई ही नहीं तुमको। तो पोस्ट यहाँ पर दिखा के मैं क्या करूँगा, मैंने पोस्ट यहाँ पर लिखा है, थोड़ा वेट करो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैंने सारे जो मैंने लिखा है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर अपने नोटबुक पर रखा है। तो अगर किसी को चाहिए, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आई हैव रिटन अबाउट रिलीजन, देन यू मस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट मी। यू कैन सी हियर, दिस इज इन इंग्लिश एंड इट्स so big. If you want to know, I have written everything in English and so many languages. So if you want to know which religion is the truth religion, then definitely answer is Islam. And if you want to know why, then text me, I will answer you.